امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب میں کہا ہے کہ وہ غزہ میں فوری جنگ بندی چاہتے ہیں، لیکن فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنا حماس کو انعام دینے جیسا ہوگا۔ فلسطین کو تسلیم کرنے والے ملکوں کو چاہیے کہ وہ یرغمالیوں کی واپسی ممکن بنائیں۔ As everyone knows, I have also been deeply engaged in seeking a ceasefire in Gaza. Have to get that done. Have to get it done. Unfortunately, Hamas has repeatedly rejected reasonable offers to make peace. We can't forget October 7th, can we? Now, as if to encourage continued conflict, some of this body is seeking to unilaterally recognize a Palestinian state. The rewards would be too great for Hamas terrorists for their atrocities. This would be a reward for these horrible atrocities, including October 7th, even while they refuse to release the hostages or accept a ceasefire. Instead of giving to Hamas and giving so much, because they've taken so much, they have taken so much. This could have been solved so long ago. But instead of giving in to Hamas's ransom demands, those who want peace should be united with one message: release the hostages now. Just release the hostages now. As we have got to come together, and we will come together, got to get it done. We have to stop the war in Gaza immediately. We have to stop it. We have to get it done. We have to negotiate. Immediately have to negotiate peace. We got to get the hostages back. We want all 20 back. We don't want 2 and 4. As you know, I got, along with Steve Witkoff and others that helped us, Marco Rubio, we got most of them back. We were involved in all of them. But I always said the last 20 are going to be the hardest, and that's exactly what happened. We have to get them back now. We don't want to get back 2, and then another 2, and then 1, and then 3. Have this process. No, we want them all back, and we want the actually 38 dead bodies back too. Those parents came to me and they want them back, and they want them back very quickly and very badly, as though they were alive. They want them. They want them every bit as much as if their son or daughter were alive. جنرل اسمبلی اجلاس سے خطاب میں ٹرمپ نے ایک بار پھر پاک بھارت جنگ بندی کا ذکر کر دیا۔ کہا کہ انہوں نے پاکستان اور بھارت کے ساتھ 7 ملکوں میں جنگ بندی کروائی ہے۔ اقوام متحدہ پر تنقید کرتے ہوئے ٹرمپ بولے، جنگ بندی کے معاملات کے دوران اقوام متحدہ نے ایک بار بھی رابطہ نہیں کیا۔ اقوام متحدہ میں اصلاحات کی ضرورت ہے۔ I ended 7 wars, and in all cases they were raging with countless thousands of people being killed. This includes Cambodia and Thailand, Kosovo and Serbia, the Congo and Rwanda, a vicious, violent war that was, Pakistan and India, Israel and Iran, Egypt and Ethiopia, and Armenia and Azerbaijan. And I did it in just 7 months. It's never happened before. There's never been anything like that. I'm very honored to have done it. And sadly, in all cases, the United Nations did not even try to help in any of them. I ended 7 wars, dealt with the leaders of each and every one of these countries, and never even received a phone call from the United Nations offering to help. What is the purpose of the United Nations? The UN has such tremendous potential. وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کئی ملکوں کی جنگیں رکوائیں، پاک بھارت جنگ رکوانے میں اہم کردار ادا کیا، جس پر ان کے شکر گزار ہیں۔ نیو یارک میں اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی اجلاس کے دوران سائیڈ لائنز پر جیو نیوز کے نمائندے عظیم ایم میاں کو انٹرویو دیتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ صدر ٹرمپ نے جنرل اسمبلی سے اپنے خطاب میں اہم باتیں کی ہیں۔ ٹرمپ دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ کی جو تقریر تھی، اس پہ آپ کا کیا رد عمل ہے؟ کیونکہ وہ تو یونائٹڈ نیشن ہی کے ذمہ دار تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ صدر ٹرمپ کی تقریر میں جو اہم خصوصی باتیں تھیں، وہ سب سے بڑھ کر کہ وہ اس دنیا میں امن قائم کرنا چاہتے ہیں اور وہ امن پسند ہیں، مین آف پیس۔ اور انہوں نے آج پھر انہوں نے اپنی تقریر میں ذکر کیا، بجا طور پہ یہ کہا کہ انہوں نے
दूसरे जो जगहों पर टेंशन थी, वहाँ पर पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान जो एक खौफनाक जंग जो 4 दिन की, उसको उन्होंने बंद करवाने में कलीदी रोल अदा किया। और सीज फायर जो हुआ उसमें सदर ट्रंप और उनकी टीम का बहुत बड़ा रोल है। और मैं समझता हूँ कि हम उनका दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। सर, ये जो आज मीटिंग होने वाली है, ये 6 मतलब मुश्तरका तौर से, इसमें क्या पाकिस्तान का व्यू पॉइंट क्या है? पाकिस्तान तो लीड रोल अदा कर रहा है, तो क्या सूरत हाल होगी है फ्रंट खाते से? ये जरा कबल इस वक्त है, जब मीटिंग हो जाए तो मैं फिर आपसे अर्ज करूँगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से ऑस्ट्रिया के वफाकी चांसलर क्रिस्टियन स्टॉकर ने मुलाकात की, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म ने तिजारत, सियाहत, मौसमियाती तब्दीली और तालीम में मुस्बत ताउन को उजागर किया। जे न्यूज़ के नुमाइंदे अजीम एमिया से बात करते हुए ऑस्ट्रिया के चांसलर और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बातचीत की तफसील बताई। How was your meeting with the Prime Minister? It was very fine. It was a warm exchange, and Exchange of words or some realities? Really good. So we have talked about main issues, cooperation in economic fields, but also in touristic fields. And right now, Pakistan is submerged into floods and all that kind of calamity. So, what kind of role can be expected? Role of Pakistan. No. Your goodwill and your role. My role. He has already offered his condolences on the death of Pakistan during the floods, and offered his support, and I have thanked him for his strong feeling for Pakistan, and we have also agreed to work together to revive our economic relation between the two countries. Thank you. औरत का रेप, अदालत में सुनवाई, वकला की बहस, असरो रसूख, दबाव, सोशल मीडिया और मीडिया पर लड़ाई, लोग क्या कहेंगे और इस जैसे दीगर जुमलों की वजह से हज़ारों ख़वातीन खामोश हो जाती हैं। जुर्म पनपता है और औरत इंसाफ से महरूम हो जाती है। जियो और 7 स्काई एंटरटेनमेंट ला रहे हैं बाहिम्मत खातून के इंसाफ के हुसूल की कहानी, केस नंबर 9, जिससे तहरीर किया है जियो न्यूज़ के मारूफ एंकर पर्सन शाहजेब खानजादा ने। ड्रामा सीरियल केस नंबर 9 की पहली किस्त कल शब 8 बजे जियो एंटरटेनमेंट पर नशर की जाएगी। एक ऐसा जुर्म जो रोज़ाना होता है, मगर एक ऐसा केस जो आपने पहले कभी नहीं देखा। हिदायतकार सैयद वजाहत हुसैन की डायरेक्शन में बनी ड्रामा सीरियल केस नंबर 9 देखिए हर बुध और जुमेरात को रात 8 बजे सिर्फ जियो एंटरटेनमेंट पर। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के 29 सितंबर के एहतजाज पर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ऑफिस का अहम फैसला। नोटिफिकेशन के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म ने अमीर मकाम और तारिक फजल को मुजफ्फराबाद भेजने की हिदायत की है। तफसीलात जानते हैं, जे न्यूज़ के नुमाइंदे एजाज सैयद हमारे साथ मौजूद हैं। एजाज सैयद, बताइएगा इस मामले की मज़ीद क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, जिस तरह के आपको पता है कि ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी है आज़ाद कश्मीर में, उसने 29 सितंबर को एक एहतजाजी कॉल दे रखी है पूरे आज़ाद कश्मीर में। और इस कॉल के नतीजे में आज़ाद कश्मीर के अंदर काफ़ी हलचल है। इस हलचल के हवाले से मामलात को खुश असलूबी से तय करने के लिए बातचीत का फैसला किया गया है। पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत की तरफ से शौकत नवाज मीर, जो कि JAC के सरबराह हैं, उनको बाकायदा खत लिखकर आगाह किया गया है और उनके साथियों को खत लिखकर आगाह किया गया है कि प्राइम मिनिस्टर ने 2 रुकनी वज़रा की कमेटी एक बनाई है, जिसमें अमीर मुकाम जो कि वफाकी वजीर हैं अमूर कश्मीर के, और उनके साथ वफाकी वजीर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी, ये कल उनसे मुलाकात करेंगे ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी से और जो ऑन गोइंग मुज़ाकरात हैं उसको फैसिलिटेट करेंगे। तो ये एक बड़ी बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए एजाज सैयद। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी ने कहा है कि ईरान यूरेनियम अफजूदगी में आला सतह तक पहुंच चुका है। एटमी हथियार बनाने के ख्वाहिशमंद ममालिक यूरेनियम को 90% तक अफजोदा करते हैं। हमने अपनी अफजूदगी को 60% तक महदूद रखा है क्योंकि हमें एटमी हथियारों की कोई ज़रूरत नहीं है। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी ने मजीद कहा कि ईरान का एटमी हथियार बनाने का कोई इरादा नहीं है।
प्रोग्राम कैपिटल टॉक में आलमी रिकॉर्ड याफ्ता तालिबा महानूर चीमा ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किताब का मुतबादल नहीं हो सकती। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में आलमी अवार्ड याफ्ता कम उम्र मुसन्निफ़ा मलाइका नवाज़ ने कहा कि वो पाकिस्तान में किताब पढ़ने के रुझान को वापस लाने की कोशिश करेंगी और जिन लोगों को किताब लिखना पसंद है वो उनकी रहनुमाई के लिए तैयार हैं। मलाइका नवाज़ ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कभी किताब का बदल नहीं हो सकता। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में सदर ऑक्सफोर्ड यूनियन मूसा हिराज ने कहा कि किताब की अहमियत बहुत ज़्यादा है। जिन ममालिक के रहने वाले ज़्यादा पढ़े लिखे हैं और जिन्होंने तालीम हासिल की है वो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं। अगर हम पॉजिटिव्स एक्सप्लॉइट करें तो दे आर फार मोर दैन द नेगेटिव्स। मेरी ज़िंदगी में तो बुक्स बहुत अहम है। दे आर वेरी प्रेशियस टू मी एंड यू नो पूरी यंग जनरेशन के लिए बुक्स आर द फ्यूचर। तो AI I don't think can ever replace। सबसे इम्पोर्टेंट नॉलेज है वो बुक राइटिंग है। अगर हम नॉलेज की बात करें तो चाहे वो बुक रीडिंग है, चाहे वो आप किसी भी तरह बुक रीडिंग करें, बट AI कभी भी बुक राइटिंग को और राइटर्स को रिप्लेस नहीं कर सकता। किताब की तो बहुत अहमियत है। एक फ्रेज है इंग्लिश में कि द पेन इज माइटियर देन द सोर्ड, एंड आई थिंक जो आजकल आप देख रहे हैं द पेन इज माइटियर देन द सोर्ड। वो मुल्क जो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, वो मुल्क उनकी अवाम जिन्होंने ज़्यादा तालीम हासिल की है वो आज आगे निकल गए हैं। वो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं और उनकी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो काफ़ी ज़्यादा हायर है बाकी कंट्रीज से। पंजाब के वज़ीर सेहत और आबादी ख्वाजा इमरान नज़ीर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सालगिरह का केक काटा। इस मौके पर रुकन सूबाई असम्बली गजाली सलीम भट्ट, मुस्लिम लीगी वर्कर और लोगों की बड़ी तादाद मौजूद थी। कारकुनों ने ढोल की थाप पर भंगड़ा डाला। ख्वाजा इमरान नज़ीर का कहना था कि पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट के ख़तरे और दीगर बहरानों से निकालने का सहरा शहबाज शरीफ के सर है। कश्मीर का मसला हो या फ़लस्तीन में इसराइल की बर्बरियत का, शहबाज शरीफ ने हमेशा मज़लूम के हक़ में आवाज़ बुलंद की है। अज़रबैजान से भारत जाने वाली गैर मुल्की परवाज़ ने कराची में हंगामी लैंडिंग की है। इसी बारे में मज़ीद जानेंगे। नुमाइंदा जियो न्यूज़ अफजल नदीम डोगर हमारे साथ मौजूद हैं। अफजल नदीम, बताइएगा क्या सूरत हाल है, क्या वजह बनी इस हंगामी लैंडिंग की? ये अज़रबैजान की एयरलाइन है, सिल्क वे एयरलाइंस इनकी परवाज़ है जो कि इसने दारुल हुकूमत बाकू से टेक ऑफ किया था और इसकी मंजिल चुनाई थी भारत का शहर है जो। तो ये पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद अबूर करके जब ये बहिरा अरब पे थी और भारत की फ़िज़ाई हदूद में दाखिल हो गई थी तो जो IL-76 तैयारा है जिसमें जो है वो कोई फनी खराबी पैदा हुई थी 31,000 फुट की बुलंदी पे, जिस पर पायलट ने करीब तरीन जो था वो कराची ATC था तो इनसे रब्ता किया। इन्होंने इसको परमिशन दी। ये तैयारा लैंड कर गया है कराची और इसको टर्मिनल 1 पे जो है वो खड़ा किया गया है। अभी इसका मुआयना जारी है और इसकी जो फनी खराबी मुमकिन तौर पर दूर होनी है उसमें क्लियरेंस में काफी टाइम लगेगा। तो पायलट जो या इनका अमला है उनको होटल मुंतकिल किया जा रहा है। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में वफाकी वज़ीर सेनेटर डॉक्टर मुसद्दिक मलिक और तहरीक इंसाफ के बैरिस्टर उमैर न्याजी ने इत्तफाक किया है कि फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत तस्लीम करने वाले ममालिक गूंगों से मिट्टी झाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वो फ़लस्तीन में नस्ल कुशी ख़त्म नहीं करवा सकते। फ़लस्तीन की कॉज तो हमने डुबा दी है माज़रत के साथ। बुनियादी तौर पे देखें 1947 का पार्टीशन एकॉर्ड, ठीक है, उस पे अमल दरामद नहीं हुआ। करते करते जो टेरिटरीज फ़लस्तीन का हिस्सा होनी थी आज गासबाना कब्ज़ा करके 55 लाख आबादी रह गई है, जिसमें से 60-70 हज़ार की नस्ल कुशी इन दिनों में हमारे सामने हुई है। तो अब जो बच गया, मैं तो समझता हूँ ये ममालिक 75% ऑफ द यूनाइटेड नेशन तो पहले ही कबूल कर चुकी थी फ़लस्तीन की रियासत को। ये तो बेसिकली उस खून से अब बरी ज़िम्मा होने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ये अग्री करता हूँ कि ये जो मिट्टी झाड़ने की कोशिश की जा रही है ये मटीरियल नहीं है, यानी जेनोसाइड तो आप रोक नहीं रहे। रोज़ आपको नज़र आ रहे हैं बच्चे ऐसे हाथ फैलाए हुए, हाथ उठाए हुए रो रहे हैं। वो बच्चों के क्लिप्स आते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए तो वो रोना शुरू करता है कि खाना चाहिए। और रोज़ रिपोर्ट आ रही है कि भूख से बच्चे मर रहे हैं, भूख से बच्चे मर रहे हैं और माएँ जो हैं उनको शहीद किया जा रहा है क्योंकि वो लाइनों में खड़ी हैं खाना लेने के लिए। तो उससे तो कोई नहीं रोक रहा। सुप्रीम कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों की समाअत 7 अक्टूबर को होगी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 8 रुकनियानी बेंच समाअत करेगा। बेंच में जस्टिस जमाल खान मंदुखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस मुसरत हिलाली, जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस शाहिद बिलाल शामिल हैं।
हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद।